Students, today we are going to read a very interesting chapter from your book Moments, chapter number 3, Ishwaran the Storyteller. So, Ishwaran the Storyteller is a wonderful story. So, before moving into the story, we have to know something about the author, and the name of the author is R.K. Lakshman. So, I'm sure most of you might be familiar with him because he is a very famous cartoonist and he works for newspaper and magazines. Okay, so Ishwaran the Storyteller, this we are going to read this person, that is Ishwaran. Okay, so why have they mentioned here the storyteller? Okay, now who is a good storyteller? A storyteller is not just a person who just narrates the stories. In fact, a good storyteller is a person who shares his experiences and motivates the person. Like I told you in descriptive paragraph, जैसे मैंने आपको बताया था कि descriptive paragraph में क्या होता है कि a good writer is a person who can influence the readers. मतलब वो रीडर्स को इस तरीके से लिखें ताकि इवन रीडर्स कैन फील व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी. सो अ गुड स्टोरी राइटर इज अ पर्सन who motivates the reader. All right, so before moving on further, let's look into the character. First one is Ganesh. When the story begins, we can see in the first line this person's name, that is Ganesh. So here Ganesh is basically a silent listener. Okay, silent listener means he's just going to listen to the story, that's it. So who is telling the story to Ganesh? Mahendra is telling the story to Ganesh. Okay, so this person Ganesh is only the silent listener. हम ज़्यादा गणेश के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं बिकॉज द मेन फोकस इज गोइंग टू बी ऑन महेंद्र एंड दिस सेकेंड कैरेक्टर दैट इज ईश्वरन. ओके, हु इज Mahindra? You know, Mahindra is a very wonderful person in this story. He is a supervisor and adapting to any place. Adapting to any place means a person who can adapt to any place, who can adapt to any circumstances, and we are going to see how he adapts in any place in the further story. And Ishwaran is the main highlight of the story. He is a good cook. A good cook is a person who makes very delicious food, and he is a storyteller. That means he is going to narrate all the story. Like I told, first Ganesh, he is not the main character. In fact, the main character is Ishwaran and Mahindra. Okay, the story was narrated to Ganesh by a young man, Mahindra by name. Like I told, this name here, Ganesh, we are going to see only once here. Okay, by a young man Mahindra, who is narrating the story. Mahindra is narrating the story to Ganesh. Now, he was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. So by profession, Mahindra was a supervisor in a firm and he was in a company जहाँ इनकी कंपनी इनको अलग अलग जगह में भेजती रहती थी. Mahindra's job was to keep an eye on the activities at the work site. So Mahindra की job क्या थी? He is going to keep an eye because he was a supervisor, and the work of the supervisor is to keep an eye on all the activities that is going in the firm or in a work site. For example, in our school, who is the supervisor? That the work of the supervisor is that they are going to see whether all the teachers are working properly or not. Okay, so he had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. So now, like earlier in the previous slide we read that he was adapted to any condition or any place. So now here again we can see कि वो क्या करता था, वो हर प्लेस से प्लेस में मूव ऑन करता था क्योंकि उसको हेड ऑफिस से, उसके ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस मिलते थे. क्योंकि वो सुपरवाइजर था तो वो कहाँ कहाँ से जाता था, फ्रॉम अ कोल माइनिंग प्लेस टू ब्रिज कंस्ट्रक्शन टू केमिकल प्लांट. उसे जहाँ भी बोला जाता था कि यू हैव टू गो विजिट देयर एंड सी वेदर द वर्क इज गोइंग ऑन प्रॉपरली और नॉट. तो महिंद्रा क्या करता था, वो उन सारी जगह में जाता था और वहाँ के वर्क्स को प्रॉपरली सुपरवाइज करता था.
एंड वन वेरी गुड क्वालिटी ऑफ हिज वाज कि वो हर एक सिचुएशन को अडेप्ट कर लेता था, बिकॉज देर आर मैनी पीपल, इनफैक्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यू और मी, देर आर मैनी टाइम्स व्हेन वी डोंट अडेप्ट अ पर्टिकुलर प्लेस. अगर हम कहीं नई जगह में जाए तो हम वहाँ ईजिली इतने जल्दी हम अपने आप को वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते. बट महेंद्र हियर वॉज अ पर्सन हु वॉज अडेप्टिव टू एनी प्लेस. This is also the good quality of Mahindra. He was a bachelor. Who is a bachelor? An unmarried person is a bachelor. ठीक है, बैचलर कौन होते हैं? जिनकी शादी नहीं होती है. तो it is clear that he was single. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd situations, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. ओके नाउ, क्योंकि उसका काम ऐसा था, सुपरवाइजर, ही वाज सुपरवाइजर, और इनको अलग अलग जगह इंडस्ट्रीज टाइप में भेजा जाता था जहाँ प्रॉपरली घर नहीं बने रहते थे या फिर प्रॉपर उतने सारे उनको लग्जरी चीज़ें नहीं दी जाती थी. बट बिकॉज ही वॉज अ पर्सन हु यूज टू एडजस्ट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस, सो इट वॉज कंफर्टेबल जॉब फॉर हिम. बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन. क्योंकि इसकी जॉब ऐसी थी कि उसको हर जगह में प्लेस चेंज करते हुए जाना पड़ता था, कई जगह अच्छी जगह नहीं होती थी, फिर भी ही यूज टू एडजस्ट हिमसेल्फ. बट इसमें क्या बताया जा रहा है कि उसके पास एक एसेट था. एसेट मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ थी, और वो अच्छी चीज़ क्या थी इसके पास? उसका कुक, जिसका नाम ईश्वरन था. किसी मैनी टाइम्स वो कहीं जाता था तो उसको ऐसे टेंट में रहना पड़ता था. एंड यू ऑल नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन टेंट, बिकॉज टेंट इज़ नॉट एट ऑल अ सिक्योर प्लेस टू लिव इन, राइट? बट it was his job, so he used to adjust himself in any kind of situation. The cook was quite attached to Mahindra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. The cook was who is the cook here? हम किसके बारे में बात करें? ईश्वरन, ठीक है. He followed him अनकम्प्लेनिंगली. वाई? बिकॉज हमने क्या पढ़ा था कि महिंद्रा की ऐसी जॉब थी कि उसको कहीं भी कभी भी भेज दिया जाता था. एंड ऑफकोर्स बिकॉज ईश्वरन वॉज इज कुक, तो उसको उसके साथ ही रहना पड़ता था हमेशा. तो उसको कभी कंप्लेन नहीं हुई थी अपने मास्टर से कि वाई डू आई हैव टू कम विथ यू एवरीवेयर, जहाँ भी आप बोलूँ, ठीक है. ही कुक्ड फॉर महिंद्रा. ही नाउ see what all work he did for Mahindra. He used to cook for him, he used to wash clothes for him, he chatted with his master at night. उसके बाद because Mahindra was single, he was a bachelor, तो वो क्या करता था कि उसके साथ रात में बैठ के उससे बात भी करता था. He could weave out endless stories and anecdotes. Anecdotes क्या होते हैं? कोई भी एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो एक रियल पर्सन या इंसिडेंट के बारे में बताई जाती है. तो he could weave out. Who is he here? ईश्वरन की बात हो रही है कि ईश्वरन ऐसे काफ़ी स्टोरीज जानता था कि वो अगर एक पर्सन को वहाँ बैठ के सुनाने भी लग जाता था तो ही यूज टू फील वेरी इंटरेस्टिंग. तो वो हर नाइट को क्या करता था अपने मास्टर के साथ, व्हेन ही यूज टू सिट एंड चिट चैट विथ हिम, तो वो हमेशा कोई ना कोई स्टोरीज बताता था अपने मास्टर को. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape. That means a empty place with no shops visible for miles around. Like again I'm telling you, like I told कि महिंद्रा की जॉब ऐसी थी कि उसको कई बार कुछ ऐसी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, कोल माइनिंग जगह में जाना होता था जहाँ आसपास कुछ भी नहीं रहता था. इनफैक्ट उनको रहने के लिए घर भी नहीं रहता था, तो वो क्या करते थे, वो कभी कभार टेंट में रहते थे. तो नाउ अब ईश्वरन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि उसकी बहुत अमेजिंग कैपेसिटी थी कि एज यू कैन सी द प्लेस हियर, ओके, इमेजिन इफ दे आर लिविंग इन दिस प्लेस. सो ही हैड द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स आउट ऑफ नोवेयर. आउट ऑफ नोवेयर मतलब इतने दूर दूर तक भी हमें दिख रहा है कि कहीं भी वेजिटेबल्स, देर आर नो स्कोप्स टू बाई वेजिटेबल्स, राइट. बट यू कैन से कि उसके पास कोई मैजिक था और एनीथिंग यू कैन से, बिकॉज इन द स्टोरी इट इज़ नॉट मैंशनड, इट इज़ जस्ट मैंशन दैट ही हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी कि वो एक एम्प्टी जगह में भी अगर खड़े हो जाता था, ही यूज टू गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम नोवेयर.
और आसपास आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ कोई भी शॉप्स या कोई इवन यू कैन नॉट सी एनी पर्सन हियर. He would miraculously conjure up means to gather or create with magic the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. अब उसके पास एक अच्छी चीज़ क्या थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनको 1 घंटा ही हुआ रहता था कि कहीं भी एक ऐसी जगह में आके तो यूज टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, पता नहीं वो कहाँ से ब्रिंग वेजिटेबल्स लाता था और उसको अमेजिंग डिलीशियस डिश में कन्वर्ट कर देता था, दैट टू विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर. महेंद्र वुड बी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट. तो महेंद्र क्या करते थे, वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते थे एंड यूज टू लीव फॉर वर्क आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम. मतलब वो ब्रेकफास्ट तो करते थे, उसके बाद ऑब्वियसली वो क्योंकि वो बाहर जाते थे, यूज टू वर्क एंड यूज टू कम इन द इवनिंग, तो वो अपने लिए फूड लेके जाते थे फॉर लंच. मीनवाइल ईश्वरन, अब जब ये उनका डेली का रूटीन बताया जा रहा है कि मॉर्निंग में व्हेन महेंद्र यूज टू गेट अप, ही यूज टू हैव ब्रेकफास्ट और अपने साथ फूड भी लेके जाता था एंड देन ही यूज टू लीव. एंड व्हेन ही यूज टू लीव, तो अब पता चलेगा कि ईश्वरन क्या करते थे पूरे दिन. ईश्वरन वो टाइडी अप द शेड मतलब जो मॉर्निंग में यूजुअली क्या होता है, जब आप जल्दी जल्दी काम करते हो तो काफ़ी सारी गंदगी रह जाती है, राइट, काफ़ी सारा आप बिखेर देते हो. तो वो क्या करता था कि जब महेंद्र चले जाता था तो ईश्वरन जो इसका कुक था वो पूरे घर को साफ करता था, उनके कपड़े धोता था एंड हैव अ लीजरली बाथ. मतलब अब आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, तो अब आराम से नहाने बैठता था. तो वो क्या करता था, ही यूज टू हैव सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड. मतलब वो काफ़ी आराम से नहाता था. एंड व्हेन ही यूज टू बाथ, वो क्या करते थे, वो हमेशा ही यूज टू मटर अ प्रेयर. मटरिंग का मतलब होता है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस. एज यू कैन सी ऑल दिस वर्ड्स दैट आई हैव रिटन इन रेड इंक, ये इन सब के मतलब हैं. फॉर एग्जाम्पल मटरिंग का मतलब होता है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस. So far we have studied about 2 characters, Mahindra and Ishwaran. जहाँ Mahindra, it is been given that Mahindra is a person who is of very good nature, he can adjust to any place and he has a asset whose name is Ishwaran. और ईश्वरन उसका कुक है जो who cooks for him very delicious food और रात को हमेशा उसको एक स्टोरी सुना के सुलाता था. Next, it would be lunch time by then. After eating, he would read for a while. It would be lunch time by then. मतलब जब वो नहाता था तो वो लंच टाइम हो जाता था. मतलब मॉर्निंग से वो जब काम करता था उसके बाद एट नून ही यूज टू हैव बाथ. अब आफ्टर लंच टाइम जब खाना वो खा लेता था, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ. मतलब व्हेन यू यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट डू दे डू in afternoon they take a nap, right? So after eating his lunch he used to read a book always. तो वो हमेशा एक बुक पढ़ता था. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Running to hundreds of pages means वो एक तमिल की बुक पढ़ता था. थ्रिलर मतलब जिसमें थोड़ा सस्पेंस हो एंड वो काफ़ी मोटी बुक रहती थी. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस. नाउ व्हाट इज इट्स, यहाँ हम तमिल की बुक की बात कर रहे हैं, ओके. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लरिशेस मीन्स जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया जाता है would hold ईश्वरन in thrill. In thrill means मतलब जिस तरीके से उस तमिल बुक्स में लोगों का सस्पेंस होल्ड किया जाता है, तो दिस इज द थिंग विच ईश्वरन liked very much about Tamil books and this is the reason why most of the time he used to read Tamil books. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. क्योंकि अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि the Tamil books that he used to read was very nice क्योंकि वो काफ़ी imaginative होती थी and वो काफ़ी suspense hold करके रखते थे. तो he was influenced by that Tamil authors and like earlier in the first slide we have read that he was a very good storyteller.
When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. तो अब इसमें बताया जा रहा है कि अगर वो एक छोटा सा भी इंसिडेंट किसी को भी बताता था तो वो इस तरीके से बताता था ताकि आगे वाले पर्सन को सस्पेंस लगे, क्योंकि इसी when you're talking to a person, if he's telling something, तो what happens, you normally get bored, right? तो कभी भी कोई ईश्वरन किसी को भी कुछ भी चीज़ बताता तो वो इस तरीके से बताता था कि नो वन विल फील बोर्ड आफ्टर लिसनिंग टू हिम और व्हेन दे आर लिसनिंग टू हिम. See, for example, they have given the example, instead of saying that he had came across an uprooted tree on the highway. uprooted tree क्या होता है, जो ट्री पूरे जड़ से निकला होता है, ठीक है. तो सिर्फ अब वो एक स्मॉल इंसिडेंट हुआ है उसके साथ कि एक वो जब जा रहा था तो उसने क्या देखा कि एक ट्री अपरूटेड था, मतलब वो जड़ से निकला हुआ था हाईवे में. तब इसको वो किस तरीके से बोलता था, सी ही वुड से विथ आईब्रोज सूटेबली आर्क्ड. एज यू कैन सी इन द पिक्चर हिज आईब्रोज, उसके आईब्रोज कैसे ऊपर हैं, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर. ड्रामेटिक जेस्चर मतलब वो हाथ से जेस्चर्स करके बताता था. द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन. डेजर्टेड मीन्स एम्प्टी. अब वो जब किसी को बता रहा है अपने हैंड जेस्चर से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बताता था कि सी हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि वो एक हाईवे में एक अपरूटेड ट्री के सामने आया, वो ये नहीं बता कि वो क्या बताता था कि द रोड वॉज एम्प्टी एंड आई वॉज ऑल अलोन. अब ये उसी के आगे का कंटिन्यूशन है. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन एनॉर्मस का मीनिंग होता है बिग bushy beast lying sprawled across the road. Sprawl मतलब जैसे you can see in the picture the tree is lying. तो now he is saying कि मैंने एक बहुत बड़ा beast देखा. beast मतलब a kind of animal. I was half inclined to turn and go back. Now he is saying कि he was a little bit scared and he wanted to go back. But as I came closer, I saw it was a fallen tree. जब उसने दूर से देखा तो it was looking like a big beast. But when he came closer, then what did he saw? That there is a fallen tree with its dry branches spread out. Mahindra would stretch himself back in the canvas chair. अब ये स्टोरी किसे बता रहा है? ये महिंद्रा को स्टोरी बता रहा है बिकॉज आई टोल्ड कि एवरी नाइट ही यूज टू टेल सम ऑफ द अदर स्टोरी टू महिंद्रा. इनफैक्ट वो एंसीडोट जो हमने पढ़ा था वर्ड, उसका मतलब होता है जो रियल स्टोरी विच इज़ रिलेटेड टू रियल लाइफ इंसिडेंट्स. तो हमेशा रियल स्टोरीज बताता था उसे. अब महिंद्रा क्या करते थे? महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली. अनक्रिटिकली मतलब विदाउट जजिंग दैम. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इफ वी हियर समबडी सेइंग कि हाँ ये वाली स्टोरी, तो वो कभी भी महिंद्रा उसे जज नहीं करता था. मतलब वो जब भी बोलता था तो उसे हमेशा सच लगता था. तो एज यू कैन सी महिंद्रा का नेचर, अगेन वन इम्पॉर्टेंट थिंग वी सॉ हियर कि ही वॉज अ वेरी काम पर्सन. वो हमेशा उसकी स्टोरी सुनता था और उनसे कभी जज नहीं करता था. नाउ ईश्वरन इज सेइंग दिस दैट the place I come from is famous for timber. अब वो ईश्वर नहीं बता रहा है. There is a richly wooden forest all around. मतलब वो जिस प्लेस से आता है वहाँ एक richly मतलब एक wooden forest है. wooden forest of what? Timber. The logs are hauled. logs मतलब जो वहाँ के wood हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं on to the lorries by elephants. तो it is obviously clear वो जिस जगह से आता है वो पूरे wooden forest से भरी रहे. एंड देर आर एलिफेंट्स देर, अ लॉट ऑफ एलिफेंट्स. एलिफेंट्स क्यों हैं? क्योंकि एज यू कैन सी हॉल्ड ट्रांसपोर्टेड ऑन द लॉरीज. मतलब एलिफेंट्स क्या करते हैं, वो जो लॉग्स होते हैं, यू नो लॉग्स आर वेरी हैवी, ओनली एलिफेंट्स और सम काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन ओनली पिक इट अप. तो वो जो ये एलिफेंट होते हैं वो सारे लॉग्स को लेके कहीं रखते थे. When they turn wild, even the most experienced Mahout is not able to control them. अब now about whom is he talking? He is saying when they. यहाँ they हैं elephants के बारे में कि जब वो कभी कभार what happens, they turn wild, they get angry. तो even the most experienced Mahout is not able to control them. Who is a Mahout? Mahout is a person who train the elephant. ठीक है. तो जो person
जो एलिफेंट को ही ट्रेन करता है जब एलिफेंट गुस्से में आ जाते हैं, इवन महत कैन नॉट डू एनीथिंग. आफ्टर दिस प्रोलॉग इज एन इंट्रोडक्टरी सेशन बिफोर अ स्पीच. क्योंकि अब इसने क्या इस बार स्टोरी स्टार्ट की थी. ही वॉज टेलिंग अबाउट एन एलिफेंट दैट, अब इसने स्टार्ट किया था, ठीक है. ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलैबोरेट एंसीडोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. तो अब उसने रियल लाइफ स्टोरी किसकी बता रहा है. ही हैज इन्वॉल्व एन एलिफेंट हियर related to his life, जहाँ उसने बताया कि I come from a place where there are a lot of elephants, and when elephants get wild, even the most experienced mohat cannot control them. As again you can see elephant. Now he's saying, one day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about. तो मतलब एक elephant कहाँ से, टिम्बर यार्ड मतलब उस फॉरेस्ट से वहाँ से निकल के वो क्या कर रहा था. ही वॉज रोमिंग अबाउट मतलब यहाँ वहाँ घूम रहा था. स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल मतलब द मोर एंड मोर स्ट्रेंथ ही हैज़, ही वॉज यूजिंग ऑल दो स्ट्रेंथ. अब वो क्या कर रहा था. ही वॉज डूइंग डिस्ट्रक्शंस, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा था दैट एलिफेंट. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Now, who's saying this? Ishwaran is saying this, that he's saying to his master that, do you know, जब एक elephant कुछ पागल हो जाता है या फिर वो कुछ अलग एक्टिविटीज़ करता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. Now again, like I told earlier, Ishwaran, whenever he used to narrate any story, he used to do hand gestures या फिर उसके facial expressions का वो काफ़ी यूज़ करता था, so that no one will get bored after listening to him. So now when he was telling about the story of this tusker, he got up और वो imitation कर रहा था, उस mad elephant की तरह बता रहा था. He was using his feet about telling about the elephant. The elephant reached the outskirts of a town, breaking the pencils down like matchsticks. Pencils मतलब जितने भी वो हैं yards से, तो obviously as you can see elephants are very strong and yards for them is just like matchsticks. So he was breaking the yard. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. तो now he's saying कि he crossed the outskirts, मतलब वो जहाँ जितना भी एरिया था that was covered with jungle, he crossed that and he came into the main road. And main road में obviously you can see stalls, people who are selling fruits, clothes and different things. So now what did he do? इसने elephant ने smash किया, मतलब he destroyed all those stalls as well. People ran helter-skelter in panic. Obviously, when people are going to see a mad elephant who is destroying everything, they are going to run in fear. The elephant now entered a school ground with children were playing, breaking through the brick wall. So now there was a school. अब elephant ने क्या किया, उस school में enter हो गया and the children were playing there, breaking through the brick wall. Now see, earlier he broke the fences. Fences बहुत ईजिली चलो ब्रेक हो जाते, बट हियर इन द स्कूल उसने क्या किया एलिफेंट ने, उन्होंने जो ब्रिक की वॉल थी, ही ब्रोक दैट वॉल एंड ही केम इन द स्कूल. ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लास रूम्स एंड शट द डोर टाइट. अब ऑब्वियसली व्हेन दे सॉ दिस एलिफेंट, ऑल द बॉयज who were playing in the ground, they went to their classroom and shut the door tight. मतलब उन्होंने जल्दी से अंदर घुस के अपने डोर्स बंद कर दिए क्लासरूम के, so that the elephant is not going to come inside. The beast, who is the beast here? We are talking about the elephant here. The beast grunted and wandered about. अब वो इधर उधर घूमने लगा. Pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net. See, again after coming to the school, he was again doing the destructions here. उसने क्या किया, जो फुटबॉल गोल पोस्ट थी, he pulled that, he tore away the volleyball net and there was many of things that he did. Uprooted the shrubs, मतलब जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे तो एलिफेंट ने वो सब भी अप्रूट कर दिए.
Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. So now, obviously, nobody can come forward because no person can fight with the elephant. क्योंकि उसने अर्लियर उसने क्या बताया था कि अगर एक एलिफेंट मैड हो जाता है तो इवन एक्सपीरियंस माहौत मतलब जो माहौत कौन पर्सन होते हैं हु ट्रेन्स द एलिफेंट, इवन दे कैन नॉट कंट्रोल देम. इफ माहौत कैन नॉट कंट्रोल देम, दैट मीन्स अ नॉर्मल पर्सन तो ऑब्वियसली कैन नॉट कंट्रोल. तो अब क्या हुआ, टीचर्स दे क्लाइम्ड इनटू द टेरेस और वहाँ से ऊपर दे हेल्पलेसली वॉच. हेल्पलेसली मीन्स ऑब्वियसली दे कैन नॉट डू एनीथिंग. सो दे went to the terrace and from there they were seeing ki what all destructions are made by the elephant. There was not a soul below on the ground. Soul matlab there was not even a single person on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. The streets were empty मतलब कि क्योंकि obviously everybody knew there is a mad elephant there, तो सब लोग अपने घर में चले गए थे और ऐसा लग रहा था कि पूरे टाउन में कोई है ही नहीं. I was studying in the junior class at that time. So who is I here? Again ईश्वरन, क्योंकि ईश्वरन अपनी स्टोरी बता रहा है तो he is saying I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. Junior class क्या होते हैं 1 to 5th. तो he was in this class and वो भी क्या कर रहा था, वो ऊपर से पूरा ड्रामा देख रहा था. आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली. आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन. अब व्हेन ही वाज सीइंग फ्रॉम देयर ही सेइंग कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी. मैंने क्या किया, अपने टीचर के हाथ से आई पिक्ड अप अ केन और मैं नीचे चले गया और मैं ओपन में आ गया. ओपन मीन्स वेयर द एलिफेंट वाज देयर. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. मतलब उसने क्या किया था, अब लाइक अर्लियर हमने पढ़ा था कि एलिफेंट वॉज अपरूटिंग ऑल द ट्रीज एंड श्रब. तो उसने क्या किया था, इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. स्टैम्प्ड इट्स फीट मतलब उसने अपने पैर जोर से पटके एंड बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट वॉज ऑल अराउंड. It looked frightening. Obviously, when you're going to see a elephant doing all these activities, you're going to be in panic. So everybody were very frightened there. But I moved slowly towards it, stick in hand. So what is he saying? तो वो elephant के सामने आया. He was moving slowly towards the elephant and he was also holding a stick in hand. Interesting. I'm sure that अब आपको आगे और जानने की इच्छा होगी कि यस आगे क्या हुआ होगा. बट फॉर नाउ let's end up this video because the chapter is a bit lengthy and it is not possible for me to complete the entire chapter in one video. So in the next video we are going to discuss what happened here. By then just go through this video and revise everything that we have studied.